Okay. Again, very good morning, everyone. Myself, Akhilesh Kumar, Assistant Manager, Application Engineer for MathWorks Products. MATLAB is also a MathWorks Products, and um, Mr. Jafar, he is a National Manager for MathWorks Products in Design Tech Systems Private Limited. So we'll start from the basics of MATLAB, and before we'll start, what kind of data types are supported in MATLAB. Okay, this is a MathWorks products family which you see. So right now there are around 110 toolboxes or modules are available in MATLAB. So two ways we design our algorithm. First way is that we write scripts as a kind of scripting, and in Simulink we use blocks instead of writing codes. We use blocks there. So this training will be based on the modules which you have, that is MATLAB, curve fitting, symbolic math, and machine learning. So we'll have a training on that modules only. Apart from that, lots of modules are available for other applications, like if you are working with control systems, signal processing, communication, image processing, computer vision, machine learning, deep learning, application deployment, like creating a executable file, code generation modules are available, like from MATLAB to C, MATLAB to HTL, MATLAB to Verilog, PLC code. So this kind of means, if you are a data analysis, if you are an engineer, if you are a scientist, I can say whatever you can imagine, you can design using MATLAB. Okay. Um, this is a technical computing workflow of MATLAB for data. First, we require to access the data. So data can be in any kind of files, right? It can be CSV file, it can be Excel file, it can be a text file. So any kind of file format can be, and we require to access the data. And if you don't have data in file, then we can access data from other software vendors also. And data we can get from hardware as well, right? If there are some kind of sensors available in hardware, so we can log data from sensors also, right? So once we have data, we require to do some kind of pre-processing on data. Pre-processing is important because once we log data in any software, then maybe there can be some missing data, maybe there can be some spikes, maybe there can be some noise, right? So we require to pre-process and remove unwanted data. And once data is representable, means we are able to plot that data, then we go for the algorithm development. That is the next step, that we develop the algorithm. So in algorithm, you can use machine learning, deep learning, static model. Depends on you that what kind of algorithm are you going to develop on your data. So once we have developed, we require, if you want, then you can generate applications also of there. And further, you can share with your colleagues with, as by generating PDF file, doc file, or HTML file. Or you can deploy in a hardware using MATLAB as well. Or if you are working on big project, then you can generate library for other languages also, like C, C++, packages for Python, Java, .dll, .exe. So for that, there is a different module available, that is called MATLAB compiler and MATLAB compiler SDK. We can use to generate libraries for other languages. This is a complete uh, workflow of data, means from data importing to taking decision and launching in a real world as well, right? So all this process we can do in MATLAB. So we'll discuss all this one by one. Okay. Okay, I have one question. Just you can write in the chat box that how many of you are aware of MATLAB? I mean, mostly everyone, or there are beginners Sir, also? Yes, ma'am. pardon to interrupt you, but these are also just beginners. So I would request you to please start with the very basic.
Okay. And if convenient, so you can please use Hindi also. So because some of our candidates are comfortable with that. ठीक है मैम, मैं हिंदी यूज करूंगा। और एक चीज़ और पूछना था मैम कि इसमें जो डेटा, आप लोग डेटा पे काम करते हैं या विदाउट डेट, अपार्ट फ्रॉम डेटा? So these are all at the basic level. So they just want to know about the MATLAB ओके, and they are going to start working on this. ठीक है, So ठीक। okay. तो जब आप फर्स्ट टाइम मैटलैब ओपन करेंगे, मैटलैब विल लुक्स लाइक दिस, लाइक दिस इज अ करेंट डायरेक्टरी जिसे आपको कोई फाइल सेव करना है या उसको एग्जीक्यूट करना है। सो आपका जो फाइल है वो करेंट डायरेक्टरी, मैटलैब के करेंट डायरेक्टरी में होना चाहिए। दैट इज अ करेंट डायरेक्टरी ऑफ मैटलैब। दिस इज अ एडिटर डिबगर। आपको अपना कोड सेव करना है तो यू कैन यूज दिस script file, or there is a live script. We will discuss about live script also. So this is used, आप अपना फंक्शन डिजाइन कर सकते हो, लाइव एडिटर में आप कोड को सेव कर सकते हो। ओके, दिस इज अ कमांड विंडो। अगर आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना है या डेटा को डिस्प्ले करना है ऑन कंसोल, दिस इज काइंड ऑफ कंसोल। सो यहाँ दिस इज अ कमांड विंडो, वी टाइप इट हियर एंड एंटर इट हियर। एंड दिस इज़ अ वर्क स्पेस ब्राउजर। जब भी हम कोई वेरिएबल को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं वो वेरिएबल्स जो है वर्क स्पेस में सेव होता है। सो दिस इज़ अ वोलेटाइल। सो वंस यू क्लोज द मैटलैब दैट ऑल वेरिएबल्स विल बी डिसअपीयर्ड। सो अगर आपको कोई वेरिएबल बाद में एक्सेस करना है तो यू रिक्वायर टू सेव दैट वेरिएबल फर्स्ट। ओके, now about data types and in MATLAB and how to assign variables in MATLAB. So MATLAB में three kind of data types are supported. These three ones which you say, okay? Boolean, numeric and text data. So Boolean सभी लोग जानते हैं, simple 0 or 1, true or false, right? Boolean is 0 or 1, two kind of data can be only 0 or 1, right? अगर मैं न्यूमरिक डेटा की बात करूं तो उसमें दो टाइप के डेटा है, एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है, एक इंटीजर डेटा है। ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट जब डेटा की वैल्यू काफ़ी बड़ा है, लेट्स से कि मुझे अर्थ से मून का डिस्टेंस असाइन करना है, उस केस में काफ़ी ह्यूज वैल्यू होगा। उस केस में फ्लोटिंग पॉइंट हम यूज करते हैं, क्योंकि जो डबल दो टाइप के फ्लोटिंग पॉइंट है, एक तो सिंगल प्रिसीजन, एक डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन में 4 बाइट डेटा का जो साइज होगा वो 4 बाइट होगा। डबल प्रिसीजन में 8 बाइट या 16 बाइट होगा। तो 16 बाइट मतलब अगर 8 बाइट की बात करो तो 8 8 8 8 8 या 64 बिट्स डेटा वी कैन सेव, राइट? 8 इंटू 8, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो अगर डेटा की वैल्यू हाई है तो वी आर गोइंग टू यूज फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, अब इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में साइन इंटीजर होते हैं, अनसाइन इंटीजर। इंटीजर बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? जब आप हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट करते हो, क्योंकि हार्डवेयर में जब भी कोई मॉडल आप डिप्लॉय करते हो तो बिट्स में आउटपुट होता है। जो फाइनल मशीन लैंग्वेज होता है वो बिट्स होता है, 0 होगा या तो 1 होगा, राइट? तो उसमें अब जो वैल्यूज होंगे वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या सिर्फ पॉजिटिव हो। जैसे डिस्टेंस की बात करूँ तो पॉजिटिव है, राइट? तो अगर डिस्टेंस सेव करना हो, वेट सेव करना हो, वेट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता उसके लिए हम अनसाइन इंटीजर यूज करते हैं। ये मैटलैब में फंक्शन भी है, यू इंट, है ना, अनसाइन इंटीजर के लिए। अगर मेरा डेटा पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे टेम्परेचर लेट्स से, राइट, इस उस केस में हम INT यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें यू एडेड है, यू इज डिनोटिंग अनसाइन इंटीजर एड। ओके, ये साइंड हो गया, है ना? तो और जो मैटलैब में सपोर्टेड है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट। ओके, उसके बाद टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट अगर कोई भी anything, if you are writing in a single or double quote, that is called text in MATLAB. Like मैं बोलता हूँ hi, I am using MATLAB. So this is a text, right? This is a character. So we will write single in the single or double quote. Okay. Apart from that, there is
two kind of, sorry, not this one, container, that is called heterogeneous container. We will discuss about that also. सी मैटलैब में कोई भी डेटा जब हम डिजाइन करते हैं या डेटा को इंपोर्ट करते हैं, न्यूमरिक डेटा की बात कर रहे हैं या सिर्फ टेक्स्ट डेटा हो या बुलियन डेटा हो सिर्फ, तो वो ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर मैट्रिक्स में एक ही टाइप का डेटा हम सेव कर सकते हैं, उसमें अगर मुझे बुलियन भी सेव करना हो, न्यूमरिक भी सेव करना हो, टेक्स्ट भी सेव करना हो, उस केस में हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं या सेल यूज करते हैं। मतलब एक वेरिएबल में मल्टीपल काइंड ऑफ क्लासेस हमें सेव करना हो, डेटा टाइप्स और क्लासेस आल्सो वी कैन से, तो मल्टीपल डेटा टाइप सेव करना हो तो वी यूज name based or index based. In that case we will use, okay, so we will discuss what is structure and sale also. Before that, let's see the range of data types. अगर अनसाइन इंटीजर 8 की बात करें तो कितने सिंबल्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 to the power 8 means 0 to 255. Okay, so you see the range is 0 to 255, right? Same अगर साइन इंटीजर, सॉरी दिस वन, साइन इंटीजर 8 की बात करें, दिस वन, तो इसमें जो फर्स्ट वाला बिट होता है वो बताता है कि डेटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। 1 है तो नेगेटिव है, 0 है तो पॉजिटिव है, तो एक तो उसमें से एक्सक्लूड हो गया, राइट। सो 2 to the power 7, 2 to the power 7 है तो 128 it will come, right? So 0 to 127 and minimum value will be -128. अगर मेरा डेटा 127 से ज्यादा है, लेट्स से कि 128, हम उसको इंटीजर 8 में सेव कभी कर नहीं सकते, तो हमें रेंज पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है डेटा टाइप्स? जैसे लेट्स से कि आपको ये कोई भी मॉडल डिजाइन करते हो, उसको हार्डवेयर में डिप्लॉय करना या किसी मशीन पे ही रन कर रहे हो, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे डेटा का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम टाइप्स ऑफ डेटा चूज करते हैं। क्योंकि अगर मेरा डेटा का रेंज जो है वो 0 टू लेट्स से -128 to 127 है, तो वाई शुड आई चूज अनसाइन इंटीजर 16 और डबल? क्योंकि वो ज्यादा मेमोरी लेगा, जैसे डबल में मैंने बताया 8 बाइट्स लेता है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ 8 बाइट्स वी विल सेव इन 4 बाइट्स। जब भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो और मेमोरी बाउंडेशन हो, तो उस केस में अपने उसके अकॉर्डिंग आप डेटा चूज करोगे, ओके। करेक्टर, इट टेक्स 2 बाइट्स इन मैटलैब। सी में 1 बाइट लेता है, लेकिन मैटलैब में टू असाइन अ सिंगल करेक्टर इट टेक्स 2 बाइट्स। लॉजिकल 0 और 1 बाइट, ओके। सो सारे डेटा टाइप्स को पहले एक बार देखते हैं, हाउ टू डिजाइन इन मैटलैब। सो आई एम स्विचिंग इन मैटलैब। सो यू सी दिस इज द मैटलैब व्हेन यू ओपन फर्स्ट टाइम, ये मैटलैब है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे कोई सिंगल वेरिएबल डिफाइन करना हो, a is equal to 23, as a default, if I give command who's a, as a default you see that क्लास इज डबल, मतलब डेटा टाइप डबल है। तो मैटलैब में कोई भी डेटा अगर आप इंपोर्ट करते हो या असाइन करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई डेटा आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसमें मेंशन है डेटा टाइप्स, जिसे इमेज जब आप इंपोर्ट करोगे तो वो अनसाइन इंटीजर 8 बिट में होता है ना, तो उस केस में वो अनसाइन इंटीजर में ही इंपोर्ट होगा। बट जिसमें कोई डेटा टाइप्स मेंशन ही नहीं है, तो वो डबल के फॉर्म में ही इंपोर्ट होगा, या आप कोई डिफाइन करोगे तो डिफॉल्ट वो डबल के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। नाउ यू सी b इज इक्वल टू, अगर मुझे अनसाइन इंटीजर 8 करना है, डिफाइन करना है, तो यू सी हियर मैंने UIN लिखा, देन आई एम प्रेसिंग टैब हियर। इस लेटर से जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है मैटलैब में, जब आप टैब प्रेस करोगे दैट विल बी शोन हियर। सो आई वांट टू यूज this one, unsigned integer 8. Let's say here again I am assigning the same value 23, okay. Now whose command if I give, it will give me the information of all the variables which are here, but I don't want all information, just I want information about a and b only. Now you see, as I told, जो अनसाइन इंटीजर 8 है वो 1 बाइट ले रहा है स्टोर करने के लिए, और इस केस में 8 bytes, 1 and 8, right? In double 8 bytes, and in unsigned integer 8 only 1 bytes it is taking to store the data.
right? So now you see one thing here, अगर मैं ये a है तो जैसे मैंने 8 बाइट्स बताया, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा वी कैन रिप्रेजेंट 0 to 255, राइट? अगर यहाँ पे मैं 255 टाइप करता हूँ, जिसे मैं एक अनसाइन इंटीजर 8 डिफाइन करता हूँ जो डेटा के वैल्यू 255 है, रिमेंबर दिस इज द इनबिल्ट फंक्शन इन मैटलैब, ओके? दिस व्हेनेवर वी एग्जीक्यूट द इनबिल्ट फंक्शन, जब भी हम इनबिल्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं उसमें इनपुट आर्गुमेंट्स देना होता है। इनपुट आर्गुमेंट्स हमेशा पैरेंथेसिस ब्रैकेट में होगा, ओके? तो इसमें हम एक अनसाइन इंटीजर 8 डिफाइन कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 255 है, राइट? Perfectly we will get that is the max value. Now अगर जब भी ये 256 से एक्सीड करेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू को ही होल्ड करेगा जो उसके लिमिट में है। 255 मैक्सिमम लिमिट है, उसी को होल्ड कर रहा। तो मेरे कहने का मतलब है अगर 255 से ज्यादा वैल्यू है तो वी आर नॉट गोइंग टू यूज अनसाइन इंटीजर 8। बेटर ऑलवेज असाइन डिफॉल्ट double like 256 like this. Fine. Okay. So here you see A and B. ये डबल में है, ये अनसाइन इंटीजर 8 में है। Let's multiply. In MATLAB for multiplication we use asterisk sign. A into B. ये तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि एक डेटा मेरा डबल में है, एक अनसाइन इंटीजर 8 में, बट वो मल्टीप्लाई हो गया, राइट? बट इट हैज नॉट टू बी। बट इन MATLAB अगर मैट्रिक्स में सिंगल वैल्यू है उसको स्केलर बोलते हैं और वो डबल फॉर्मेट में होगा, उससे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट अगर दो अलग क्लासेस हैं, इंस्टेड ऑफ स्केलर वैल्यू, स्केलर में सिंगल वैल्यू एंड क्लास विल बी डबल, दैट इज कॉल्ड स्केलर इन मैटलैब। अब इसी केस में जो ये a है, a इज डबल, राइट? हम क्या करते हैं, a को a में ही सेव करते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं अनसाइन इंटीजर 8 में, दिस वन। इस केस में क्या कर रहा है, मास्किंग काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब a को अनसाइन a पहले डबल में था, उसको अनसाइन इंटीजर 8 में कन्वर्ट किया, फिर से हम उसको a में सेव कर रहे हैं, ठीक है? नाउ दिस इज आल्सो अनसाइन इंटीजर 8। Now let's multiply again. C is equal to A into B. And you see here कि दोनों अनसाइन इंटीजर 8 था, 255 multiply with some values, value exceed कर रहा है, we are not able to get the original value, so it is not possible. So better use different data types. Okay, now A is equal to, हम लोग देखेंगे कैसे मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, but what I am going to do, square bracket we use to create a matrix. Okay, so single row I am going to create in unsigned integer 8. Fine. A is this and B is, let's say, signed integer 8, and let's say value is 3, right? So whose A B इस केस में A is unsigned integer 8, B जो है वो signed integer है. Let's multiply. Asterisk sign we use for the multiplication. We will get the error in this case. अगर ये B सिंगल वैल्यू डबल में होता और सिंगल वैल्यू होता तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब नाउ यू सी A का क्लास डिफरेंट है, B का क्लास डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते इस केस में, राइट? लेकिन अगर ये B, लेट्स से कि B की वैल्यू यहाँ पे 3 है, नाउ B is double default, right? Now let's multiply. Now we can multiply because B is scalar. So these things you have to remember about data types. If you, अगर आपको data types याद नहीं है, variable define करो आप, host command दो and the variable name and you will get what kind of data types it is और कितना byte ले रहा है वो store करने के लिए, ठीक है? Okay, so let me switch here. So we saw integer kind of data types and floating point of data types. कैसे define करना है? Single precision
को फ्लोट बोलते हैं, फ्लोटिंग, और जो जिसको फ्लोट बोलते हैं सी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं फ्लोट, बट दैट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल प्रिसिजन। तो जैसे ए में मुझे सिंगल प्रिसिजन डिफाइन करना हो तो सिंपली हम इसमें कोई वैल्यू देंगे, वो सिंगल प्रिसिजन में डिफाइन होगा। और ये जो फंक्शंस मैं यूज कर रहा हूँ वो कन्वर्जन के लिए भी यूज होगा, साइन इंटीजर 8 से साइन इंटीजर 8, और इन द डबल फॉर्म, जिसे अगर मुझे ये ए है इसको डबल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आई विल राइट डबल ऑफ ए, और वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इस फंक्शन को हम क्रिएशन के लिए भी यूज करते हैं एंड कन्वर्जन के लिए भी यूज करते हैं, डेटा टाइप्स क्रिएट करने के लिए एंड कन्वर्ट इन दैट फॉर्म, बोथ वे। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट boolean. We saw this numeric one, signed and unsigned, we got boolean. I am going to clear everything. To clear the command window, we use CLC command. Let's say a is equal to, I have some values. If I give CLC command, ये clear हो जाएगा command window. अब boolean की बात कर रहे हैं तो boolean simply true, that is boolean. तो जब भी हम true टाइप करेंगे, it will give me a logical one. Logical one means true. Same, if I give false, it will give me a logical 0. Okay. Now here you see true. True. In MATLAB, to use लॉजिकल ऑपरेटर एंड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ट्रू और ट्रू, और को ये वर्टिकल लाइन से डिफाइन करते हैं, ट्रू और लेट्स से फॉल्स। क्या आएगा इस केस में, पहले एंड एग्जीक्यूट होगा, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू आएगा, दैट इज लॉजिकल वन, लाइक दिस द एंड ऑपरेटर, सॉरी दिस आर द लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, एंड दिस इज द साइन नॉट, रिमेंबर ये नॉट का साइन है मैटलैब में, है ना, नॉट फॉल्स या नॉट ट्रू। इस केस में क्या होगा, पहले नॉट एग्जीक्यूट होगा, नॉट ट्रू मींस फॉल्स, फॉल्स इनटू फॉल्स, फॉल्स, राइट। नाउ ये एग्जीक्यूट होगा, ट्रू एंड ट्रू, और इधर फॉल्स था तो ट्रू और फॉल्स, अगेन वी विल गेट लॉजिकल 1. So this is the not sign, this is the boolean how we apply. Okay, this was about the boolean. अगर मुझे लॉजिकल मैट्रिक्स क्रिएट करना हो तो, अगर मैं चाहता हूं एक ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करो जिसमें सारे वैल्यू लॉजिकल 1 हो, तो सिंपल इज द ट्रू, देन इन ब्रैकेट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करना है। सो इन दिस केस यू सी 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, राइट, ये डिफाइंड हो गया, परफेक्ट। सो राइट नाउ ये जो मैं कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये कमांड विंडो में है, तो जब भी मैं मैटलैब क्लोज करूंगा ये सारा डिसअपियर हो जाएगा, सेव नहीं होगा। सो लेटर वी विल सी हाउ टू यूज द लाइव स्क्रिप्ट टू सेव माय डेटा एंड कोड्स आल्सो, बट इफ यू स्क्रॉल एरो अप एंड डाउन तो आप हिस्ट्री से कॉल कर सकते हो। ये हिस्ट्री जब मैटलैब क्लोज करके दोबारा ऑन करोगे तब भी ये रहेगा, कुछ दिन की हिस्ट्री जो है इसमें सेव रहती है, बाकी वो डिलीट होता जाता है ना, ये हिस्ट्री से आप इसको कॉल कर सकते हो। ओके, या एक कमांड दे सकते हो डायरी ऑन, अगर कमांड विंडो के में जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको अगर सेव करना है तो जब भी आप ये कमांड दोगे ना डायरी ऑन, तो ये इसमें एक डायरी क्रिएट हो जाएगा ये, और इसमें सेव होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप फिर से उसको ऑफ करना है तो डायरी ऑफ कमांड दोगे आप तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। Okay, this was about the boolean. Now we are going to talk about text. So CLC command to clear the command window, and clear command we use to clear all these variables. Okay. Now we don't have any variables. So अगर मैं अभी ये टाइप करूंगा तो MATLAB will tell me it is undefined function or variable, because मैंने वो क्लियर कर दिया, हमारे वर्क स्पेस में है नहीं वो। ओके, text. Let's say I am going to write one text here. Hi, I am using MATLAB. सिंगल कोट में जब आप राइट करोगे उसको हम MATLAB में कैरेक्टर बोलते हैं। ओके, if I give command whose as, you see that class is character,
and 40 bytes it is taking. अच्छा, अगर मैं एक कैरेक्टर होगा तो कितना बाइट्स लेगा? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, सारा मैं रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ एच को रखता हूँ, whose s. Now you see 2 bytes. To assign a one character it takes 2 bytes. Okay, so previously I had this one. अच्छा ठीक है, इस केस में अगर मेरा जो सेंटेंस है वो ऐसे होता, now you see what is happening here. Single quote, hi, I, then again single quote is there. So there can be more than multiple quotes inside the sentence. अगर ऐसा है तो उस केस में एरर आएगा. मतलब एक तो स्टार्ट कोट, ये ओपन सिंगल कोट है, दिस इज द क्लोज सिंगल कोट, एंड बिटवीन दैट sentence, in the sentence if there are one or more than one single quote, you can't represent character like this. ठीक है, तो उस केस में आप डबल कोट यूज करोगे. Perfect. Now I am going to run. Perfect. Now you see if I give command who says this is a string, this is called a string in MATLAB. Okay, a string is an object in MATLAB. Okay, what is object now? एक नया वर्ड आ गया ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? तो पहले ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे. जस्ट 1 minute. Let me discuss the object, then we'll further discuss. Okay, an object is an instance of a class. Means object is an instance of a class. There is a way to define the class. So what happens here, when a program executes, the object is created. जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या कोई क्लास डिफाइन किया उसको एग्जीक्यूट करते हैं, देन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड बिहेव्स इन द वे डिफाइंड बाय द क्लास. जो भी हम क्लास में डिफाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट इट स्टेट्स एंड इट्स मेथड्स रिप्रेजेंट ऑल द एक्शंस अ यूजर में परफॉर्म. मतलब अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जिसे इस केस में यू सी एस इज द ऑब्जेक्ट, ये जो एस है दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके, ये सारे मेथड्स हैं जो हम ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं. तो अगर किसी मेथड को कॉल करना है किसी ऑब्जेक्ट से, तो एस या कोई भी वेरिएबल नेम डॉट, डॉट के बाद हम मेथड को यूज कर सकते हैं. ओके, so this is the object here. As I told, s is the object, right? S dot, I am going to press the tab to know what kind of methods are available. You see append is there, character is there, contains is there. For example, if I use this, अगर मुझे पता करना है कि इसमें MATLAB वर्ड है कि नहीं है, s dot contains, it will tell me. Logical one means there is a MATLAB word, right? अगर मुझे पता करना है R202021 A is available or not. So not available, logical 0. 1 means that word is available and 0 means it is not available there. ठीक है, ओके. तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें मेथड्स होंगे, तो आप डॉट दोगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट एंड प्रेस द टैब एंड यू विल गेट व्हाट मेथड यू कैन परफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल और कुछ देखते हैं इसमें, अपेंड. जैसे इसमें मुझे कुछ अपेंड करना हो तो मैं एस डॉट अपेंड, इसको आपको याद नहीं रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा डॉट करके टैब प्रेस करोगे वो दिखेगा इसमें, है ना, अपेंड. लेट्स से कि मुझे इसमें अपेंड करना है R2021A. ये क्या होगा इसमें, ये जहां से मैटलैब का जो लास्ट लेटर बी है ना, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा ये. तो हम इसमें क्या करेंगे कि स्पेस दे देंगे ताकि इसमें एक स्पेस भी क्रिएट हो जाए, राइट. नाउ यू सी हाउ आई एम यूजिंग मैटलैब R2021A. सो ऑब्जेक्ट अगेन, इफ देयर इज अ ऑब्जेक्ट देन देयर विल बी मेथड्स आल्सो, सो दैट इज अ ऑब्जेक्ट. ओके, so this is about the structure. Now let me summarize what we saw, what we studied here. So we saw data types, that is boolean, numeric, text. These 3 data types we saw and how to represent in MATLAB. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए डेटा टाइप में, एनी क्वेश्चन.
अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर आपने ये नेगेटिव बताया 1 के लिए। 1 के लिए सर क्या है, एक बार फिर हेलो, से बोलिएगा। ये 1 वर्ड के लिए नेगेटिव बताया और 0 के लिए पॉजिटिव बताया आप। 0 के लिए पॉजिटिव नहीं, ट्रू फॉल्स वो बुलियन की बात कर रहे हैं आप? जी सर जी। नहीं, बुलियन में ना ट्रू या फॉल्स होगा या 0 या 1 होगा, राइट? सर ये नीचे लॉजिकल 0 है ना? एक मिनट, 0। जी ये वाला ना, जी सर। ये वाला पार्ट, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं ना बुलियन की? जी जी सर। हाँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैटलैब में बुलियन को ट्रू या फॉल्स से डिफाइन करते हैं। ट्रू मतलब 1 है जी सर। एंड अगर मैं इसमें फॉल्स लिखूंगा तो इसका मतलब ये लॉजिकल 0 है। या तो हम लॉजिकल में उसको शो करें या ट्रू या फॉल्स में करें, तो वो बुलियन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है सर। ओके। और कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाह रहा हो? सर पहले तो ये बहुत कम समझ में आ रहा है थोड़ा। अच्छा, हाँ सर। इसके पहले आपने जैसे कोई और लैंग्वेज यूज किया हो? नहीं सर, मैटलैब कभी ये लैंग्वेज पढ़ी नहीं है ना सर। नहीं नहीं, मैटलैब छोड़ के आपने कोई और लैंग्वेज यूज किया हो? नहीं, कैसी सर? जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, कोई भी लैंग्वेज नहीं सर, नहीं नहीं है। यूज किया ना, इसीलिए वो नहीं आ रहा। मतलब ये जो मैंने बताया अभी, वो सारे जी सर। लैंग्वेज का बेसिक्स है, डेटा टाइप्स। तो जी सर। अभी अगर 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 आप जब सी भी यूज करोगे ना तो वो डेटा टाइप से ही स्टार्ट होता है। तो अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है तो जरूरत नहीं है जो अभी बताया उसको समझने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसको समझो ही, बट वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको बताया कि कितने डेटा टाइप्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप हार्डवेयर पे काम करते हो तो हार्डवेयर में मेमोरी कम होता है, तो बिल्कुल। हमें, हाँ, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा इंटीजर यूज करना है। अगर मेरे डेटा टाइप का रेंज क्या है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। जैसे मेरे डेटा टाइप्स का रेंज 8 बिट्स का ही है तो हम 16 बिट्स नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो मेमोरी फुल हो जाएगा। जब 8 बिट्स का ही डेटा है तो 8 बिट्स ही यूज करेंगे, राइट? जी। इसलिए उसको मैंने बताया। ओके, जी अपार्ट सर। फ्रॉम दैट और कोई क्वेश्चन है किसी का, या कंटिन्यू करें? ओके सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। मैटलैब में हेल्प कैसे लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैटलैब के जितने भी फंक्शंस हैं उसके सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है मैटलैब में अवेलेबल। ओके, तो हमें कहीं गूगल भी नहीं करना, वी कैन गेट एवरीथिंग इनसाइड द मैटलैब। तो कई सारे वेज है हेल्प का। मैं यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक वे ये है कि आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे मीन लेना है बट मुझे पता नहीं कि मीन लूंगा तो उसका फंक्शन क्या है ना? तो मैं सिंपली यहाँ पे मीन टाइप करूंगा। ये जो दिख रहा है, ये ऊपर वाले ये फोल्डर का साइन है, ये सारे फोल्डर्स हैं बाय द नेम ऑफ मीन, जिसमें मीन मेंशन है। अगर जो भी एफएक्स से स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन लिखा भी है यहाँ पे, ये सारे फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे मीन टाइप किया, ये मीन फंक्शन है मीन लेने के लिए। इट इज रिटेन एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एरे। ओके, एरे हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, नाउ यू सी हियर कि यहाँ पे ये सिंटैक्स है उसका, कि कैसे मीन को हमें यूज करना है। ये डायमेंशन वाइज भी हम कर सकते हैं, रो वाइज मीन लेना है अगर वो मैट्रिक्स है, या कॉलम वाइज मीन लेना है। नाउ ये तो सिंटैक्स हो गया और एक्सप्लेनेशन हो गया। एक्सप्लेनेशन नहीं है, जनरली सिंटैक्स ही है इसमें बस। मुझे इसका एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल भी देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मोर हेल्प। ठीक है,
ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, इसमें ये सिंटैक्स हो गया, नीचे स्क्रॉल करूंगा ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मुझे मीन लेना है तो मैं ये डॉक्यूमेंट मेरा ओपन रहेगा यहाँ पे, और मैं इसको, ये सारे नीचे एग्जांपल्स हो गए, मैं यहीं से देखता भी रहूंगा कि कैसे आर्गुमेंट्स देना है और किस टाइप के आर्गुमेंट्स है। तो जैसे a इज इक्वल टू मीन मैं ऐसे टाइप करूंगा, जैसे ये लिखा हुआ है, कोई वैल्यू प्रोवाइड करवा दिया इसमें ऐसे और इसका मीन करके वो मुझे बता देगा। तो मैं डॉक्यूमेंट इज आल्सो ओपन एंड आई एम यूजिंग इट एज अ रेफरेंस की तरह मैं यहाँ पे साइड बाय साइड यूज कर रहा हूँ। या मुझे इसके बड़े डॉक्यूमेंट में देखना है ऑफलाइन ऑन द ब्राउजर, ऑफलाइन ब्राउजर में देखना है तो ओपन हेल्प ब्राउजर का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखो सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है, डिस्क्रिप्शन दैट इज एक्सप्लेनेशन कि इसमें इनपुट आर्गुमेंट्स क्या है, आउटपुट क्या है, सारा डिफाइंड है, राइट। अब मैं एग्जांपल पे क्लिक करूंगा तो मीन के ये सारे एग्जांपल्स भी आ गए, राइट, ये मीन के सारे एग्जांपल्स भी आ गए। तो हर फंक्शन का इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में एग्जांपल्स है। ओके, बाकी और तरीका भी देखेंगे, जैसे अगर मुझे फंक्शन नेम पता है लेकिन मुझे पता नहीं वर्क कैसे करता है। लेट्स से कि मुझे साइन लेना है, तो मुझे नहीं पता कि मैं साइन लूंगा तो इनपुट आर्गुमेंट जो होगा उसका वो रेडियन में होगा या डिग्री में, मुझे पता ही नहीं। तो अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉक स्पेस साइन मैं इंटर कर दूंगा, इसका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब नाउ यू सी द फर्स्ट लाइन इट इज रिटन आफ्टर द हेडिंग साइन ऑफ आर्गुमेंट इन रेडियंस, राइट, इट इज रिटन देयर, राइट। सो मीनवाइल अभी हमारे पास 4 दिन है आज का लेके, तो हम और तरीका भी देखेंगे कैसे हेल्प ले सकते हैं, डिफरेंट वेज वी विल सी। Okay, we saw all these things. Now about the function handle and heterogeneous container. Okay, now we are going to see this. तो फंक्शन हैंडल से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हैंडल है क्या? सबसे पहले आपको कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन क्रिएट करना है सिंगल लाइन में, जिसको फंक्शन भी बोलते हैं, तो वी यूज फंक्शन हैंडल यूज करते हैं। सिंगल लाइन में इक्वेशन क्रिएट करना, जैसे अगर मैं एक इक्वेशन क्रिएट करूं y इज इक्वल टू a प्लस बी, ये एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि a अनडिफाइंड है और b भी अनडिफाइंड है, राइट। तो ये इसने पहले को चेक किया, a अनडिफाइंड है तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन और वेरिएबल a अनडिफाइंड है, राइट। लेकिन मुझे इस फंक्शन को क्रिएट करना है a भी अनडिफाइंड हो तब भी, उस केस में इसको हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू @ इसको फंक्शन हैंडल बोलते हैं @ को, राइट। अब आपके इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं उसको आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिख लोगे आप, ठीक है। इस केस में a, b, ये क्लियर है। ये मेरा क्या है, इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू, इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, @ इज द फंक्शन हैंडल, और आपके इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल है उसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में आप लिखोगे, फिर आप इक्वेशन लिखोगे, सिंगल लाइन इक्वेशन। अब इसमें a और b की वैल्यू y में देना है, मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो y इज द माई फंक्शन। दो वैल्यू है इसमें, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है a और b, लेट्स से कि 3 and 4 एंड इट विल बी 7, राइट। या और कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, लेट्स से कि दिस इज, अगर मेरा ये 25 इंटू एस्ट्रिक साइन मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, लेट्स से 25 इंटू ए का स्क्वायर, राइट। स्क्वायर के लिए हम कैप यूज करते हैं, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, दिस इज पावर a टू द पावर प्लस 25 इंटू b plus let's say 12, single line function of 25a square plus 25b plus 12. Now if I have to execute this function, I will give some values of a and b, let's say this is 2 and 3 numeric values, and this will be calculated, ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, उसका फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप किसी वेरिएबल में इसको सेव नहीं करोगे तो एज अ डिफॉल्ट वो आंसर में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेट्स से कि मैं इसको सेव करता हूं
अंडर स्कोर वाई। तो सबसे पहले कभी भी जो भी मेरा वेरिएबल स्टार्ट होगा जिसमें मुझे सेव करना है, जो वेरिएबल डिफाइन करना है मुझे, उसमें कभी भी अंडर स्कोर से स्टार्ट नहीं होगा, न्यूमरिक से भी स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा वो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। जैसे इस केस में मैंने अंडर स्कोर यूज किया है तो आई विल गेट द एरर, बट आप कैरेक्टर के बाद अंडर स्कोर यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, या कैरेक्टर के बाद अंडर स्कोर फिर से आप कैरेक्टर यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, आपका वेरिएबल नंबर से भी स्टार्ट नहीं होगा, आई विल गेट एरर अगेन। ओके, तो हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, बट इसमें आप नंबर डिफाइन कर सकते हो, लेटर कैरेक्टर देन नंबर, इट विल बी सेम। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन हैंडल। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक साइन यूज करेंगे, पावर के लिए ये वाला साइन यूज करेंगे, प्लस सिंपल प्लस, सब्ट्रैक्शन सिंपल माइनस साइन विल यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस द सिंगल लाइन फंक्शन विच वी हैव क्रिएटेड, राइट। मैं यहाँ पे स्विच करते हैं। नाउ वी विल सी दिस थिंग्स, नेम बेस्ड स्ट्रक्चर एंड इंडेक्स बेस्ड। बिफोर दैट we will see how to create matrix in MATLAB. Okay, in MATLAB, in a matrix if you have a single value, अगर MATLAB में सिंगल वैल्यू है, किसी भी वेरिएबल में सिंगल वैल्यू असाइन है, उसको हम स्केलर बोलते हैं, और वो डबल फॉर्मेट में होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। वेक्टर सिंगल रो या सिंगल कॉलम को हम वेक्टर बोलते हैं, या मैट्रिक्स फॉर्म होगा, रोज इनटू कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो स्केलर सिंगल वैल्यू, वेक्टर सिंगल रो और सिंगल कॉलम, और मैट्रिक्स विल बी इन द ग्रिड फॉर्म, rows into column, number of rows into number of columns. Okay, so let's see how to design a vector in MATLAB. सर आपकी सर आवाज कटती है, आवाज कटती है, आवाज आती नहीं है कभी कभी। अच्छा, मैं अब और लोग से भी पूछ लेता हूँ, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं। अगर क्लियर आ रहा है तो आप बता सकते हैं यस करके चैट बॉक्स में। भाई वॉइस इज कमिंग क्लियर फॉर अदर्स? यस सर, आ रहा है क्लियर। एक बार सर थोड़ा सा इंटरनेट देख लीजिए अपना, शायद या तो ओके सर, वो तो कभी कभी कटती है सर, इसलिए बोला। अच्छा हाँ अच्छा सर, वो आपके नेटवर्क का शायद कोई इशू होगा। अखिलेश सर, वॉइस इज क्लियर, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ओके मैम, ओके ओके। नाउ विल सी हाउ टू क्रिएट अ वेक्टर। अगर मुझे मैनुअली कोई वेक्टर क्रिएट करना हो, सिंपली हम इसमें वैल्यू असाइन कर देंगे रेंडमली, कोई भी वैल्यू, जो भी आपके पास डेटा है, सिंगल लाइन, दिस इज अ सिंगल रो वेक्टर, दिस इज कॉल्ड रो वेक्टर, इसको रो वेक्टर बोलते हैं। इसमें चाहे तो आप स्पेस दे सकते हो या कॉमा दे सकते हो, कॉमा कितना भी स्पेस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगा। अगर आपने ऐसे कर दिया या डबल स्पेसिंग हो गया, नो इशू, सेम थिंग इट विल कम, चाहे कॉमा दो चाहे मल्टीपल स्पेस है उसमें, कोई इशू नहीं है, यू कैन क्रिएट द वेक्टर। ओके, दिस इज द वे वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट टू क्रिएट द वेक्टर। स्क्वायर ब्रैकेट वेक्टर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं या मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के और भी फंक्शनैलिटी है, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, दिस इज ए, अब रो कैसे क्रिएट करेंगे, अगर मुझे मैनुअली रो क्रिएट करना हो तो से इसी को मैं रो में कन्वर्ट करता हूँ, है ना। तो ये 4 है, लेट्स से कि ये फर्स्ट रो हो गया, सॉरी सिंगल कॉलम, ये रो है, सिंगल कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो रो है ना, सिंगल रो है, राइट। तो इसी को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लेट्स से 4 फर्स्ट रो है, सेमी कॉलन, देन 5 सेमी कॉलन, 3 सेमी कॉलन, 5 सेमी कॉलन, 6 सेमी कॉलन एंड 9 के लास्ट में जो लास्ट वैल्यू होगा उसमें सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला वी हैव टू लीव इट विदाउट सेमी कॉलन। तो ये कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए ये क्या बता रहा है, ये मेरा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, फिफ्थ रो है। जब भी हम सेमी कॉलन ब्रेक क्या बता रहा है, वो सेमी कॉलन बता रहा है, नंबर ऑफ सेमी कॉलन्स,
+1 is the number of rows. You see, तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 रोज हो गए और एक कॉलम हो गया. दिस इज कॉल्ड कॉलम वेक्टर. तो इसमें अगर मुझे इसका साइज पता करना है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, साइज भी, you see 6 rows and 1 columns, right? मुझे इसमें पता करना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसका लेंथ क्या है. तो लेंथ एंड द वेरिएबल नेम a or b, any you can give. It will say 6 elements are there. The length of this variable is 6. Fine. अच्छा, ये मेरा a था. इसको सिंगल लाइन में विदाउट राइटिंग लाइक दिस, बिना ऐसे लिखे हम इसको कैसे कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसका ट्रांसपोज लेते रो कॉलम, कॉलम रो हो जाता है, राइट. तो मैटलैब में ट्रांसपोज लेने के लिए a जो भी वेरिएबल नेम है एंड सिंगल कोट, दिस वन single inverted comma, and it will be converted in a column. Perfect. Now मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे. तो जैसे हमने रो क्रिएट किया ना, कॉलम, ये कॉलम सेमी कॉलम, यही इसी को यूज करके हम मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे. जैसे C इज इक्वल टू, लेट्स से कि मुझे एक 2x2 का मैट्रिक्स क्रिएट करना है. तो चाहे मैट्रिक्स क्रिएट करो चाहे रो क्रिएट करो, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है. तो 2x2 का मैट्रिक्स क्रिएट करना है जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो पहले हम फर्स्ट रो लिखेंगे. तो फर्स्ट रो में 2 कॉलम, क्योंकि मैंने 2x2 बोला, 2 ही कॉलम है. देन सेमी कॉलन, देन सेकेंड रो एंड ब्रैकेट क्लोज. लास्ट में हम सेमी कॉलन फिर से नहीं लगाएंगे. यस, कन्वर्ट. परफेक्ट. इसी तरह अगर मुझे d इज इक्वल टू 3x2 का क्रिएट करना, मतलब जिसमें 3 रोज हो और 2 कॉलम्स हो, 2 कॉलम्स हो, तो ये 2 कॉलम हो गए, देन सेमी कॉलन, ये फर्स्ट रो हो गया, देन अगेन 2 वैल्यू, देन अगेन 2 वैल्यू, क्योंकि 3 रोज क्रिएट करना है. तो ये फर्स्ट रो जिसमें 2 कॉलम, सेकेंड रो जिसमें 2 कॉलम, थर्ड रो जिसमें 2 कॉलम, राइट. तो ये क्रिएट हो गया 3x2 का मैट्रिक्स. और इसका साइज पता करना है, d डायमेंशन. सो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. इसी में ये साइज के बाद कॉमा 1 कर दो. 1 डायमेंशन बताता है रो को और 2 डायमेंशन बताता है कॉलम को, ठीक है. तो अगर 1 करूंगा तो ये बताएगा नंबर ऑफ रोज कितने हैं. 2 होता है वर्टिकल डायमेंशन, तो ये बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है. कभी कभी जब आप कोड राइट करते हो तो कभी कभी रिक्वायर्ड होता है कि हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करना है या नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लूप्स लगाते हो. एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. ओके, सो दिस, ओके, ये A है और लेट्स से कि ये B इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज ले लेते हैं. ये B है, ये A हो गया, ये B हो, सॉरी ये B हो गया, है ना. A और B, इन दोनों को एक सिंगल रो में कन्वर्ट करना है. इन दोनों को एक सिंगल रो में कन्वर्ट करना है. तो C इज इक्वल टू कॉनकैटिनेशन के लिए भी हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं. तो A B कॉमा B, दैट्स ऑल. ये सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाएगा. परफेक्ट. अब इसको 2 रो में कन्वर्ट करना है. ए और बी को 2 रो में कन्वर्ट करना है. तो आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे ये फर्स्ट रो के बाद सेमी कॉलन लगा देते हैं, है ना. बट ये ध्यान रखना, ए और बी के नंबर ऑफ लेंथ जो है इक्वल होना चाहिए या नंबर ऑफ साइज इक्वल होना चाहिए, तभी वो कॉन्केटेनेट होगा, है ना. तो इसको मैं एंटर करता हूँ. नाउ यू सी इट इज कन्वर्टेड, राइट. सो दिस इज सी. थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आल्सो विल सी. सो आई एम गोइंग टू गिव अ CLC कमांड टू क्लियर द कमांड विंडो. एक फ्रेश डिफाइन करते हैं. ए ऑलरेडी डिफाइंड है यहाँ पे, लेकिन मैं दोबारा ए डिफाइन करूंगा तो पुराना वाला जो ए है, ओल्ड वन, वो नए वाले से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है. तो एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं 3x3 का. ओके, multiplication we are going to see, then we are going to see division also. एक B मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, वो भी 3x3 का. Okay, so we have A and B. First thing,
पहला मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं एरे मल्टीप्लिकेशन। मींस पहले मैट्रिक्स का पहला वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए। मतलब 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 2, 6 इंटू दिस, 7 into this, 1 into 2, and 1 into 0, 2 into 1, like this. In that case, asterisk sign multiplication के लिए यूज होता है, राइट? तो इस केस में ये इसको एरे मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मतलब पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, तो उस केस में डॉट एस्ट्रिक यूज करेंगे, है ना? ए डॉट एस्ट्रिक। See, this is the value. See, 4 4 ja 16, 16 we have, 5 5 ja 25, 6 into 2 12, 6 into 5 30, like this. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैट्रिक्स रूल फॉलो होना चाहिए, राइट? नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक? तो उस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सिर्फ एस्ट्रिक यूज करेंगे, सी, इन अ सिंगल लाइन। इसको मैनुअली करोगे 4-5 मिनट्स लगेगा, हम इसमें सिंगल लाइन में कर सकते हैं। सेम, दिस इज ए, दिस इज बी, सब्ट्रैक्शन करना हो ए माइनस बी, मतलब 4 विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय बी, दिस 4, 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस 5 से, 6 में से 2 माइनस होगा 4 आएगा, उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? डिवीजन, तो जैसे एरे मल्टीप्लिकेशन बताया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह इसी टाइप का मुझे अगर डिवीजन करना हो तो डॉट यूज करेंगे, और ये फॉरवर्ड स्लैश इज यूज फॉर द डिवीजन, ए डॉट स्लैश बी। ओके, अगर मैट्रिक्स डिवीजन करना हो ए स्लैश बी, दैट इज मैट्रिक्स डिवीजन। ये इन्फिनिटी क्यों आ रहा है? क्योंकि वैल्यू 0 0 थी, ये वहां पे इसमें है ना, ये 0 0, ये ए में 0 0, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, राइट? तो ये हो गया मैट्रिक्स डिवीजन। ओके, तो अगर मैट्रिक्स ऑपरेटर अप्लाई करना है, मैट्रिक्स डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो डॉट यूज कर लेंगे, सॉरी विदाउट डॉट। एंड इफ आई हैव टू डू एरे मल्टीप्लिकेशन, मतलब पहले वेरिएबल का एलिमेंट्स दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो डॉट यूज करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिंपली प्लस माइनस वी हैव टू यूज दैट। ओके, दिस इज ए, इसका मुझे पूरा लॉग लेना है। लेट्स से आई वांट टू टेक अ लॉग ऑफ ऑल द वैल्यू इन अ सिंगल लाइन। मैं इसको सेव कर देता हूँ लॉग वैल्यू के नाम से, ओके, log 1। एंड यू सी इन मैटलैब नेचुरल लॉग के लिए सिर्फ लॉग टाइप करते हैं और ए, इट विल टेक द नेचुरल। इस केस में जो बेस होगा वो ई होगा, सो दिस इज अ नेचुरल लॉग। अब लॉग मुझे लेना है जिसमें बेस 10 हो, तो यहाँ पे जो ये लॉग है ये इनबिल्ट फंक्शन है, यहाँ पे 10 राइट कर देंगे, है ना? तो ये लॉग ऑफ बेस 10, तो सिंगल लाइन फंक्शन सारे का लॉग आ गया। इसी तरह सिंगल वैल्यू का भी ले सकते हैं, log of let's say 34, right, or base 10, simply we can take the log here. Fine. Okay, now we saw the matrix. Now we are going to see structure. What is structure? When you have data that you want to organize by name, you can use the structure to store it. अगर आपको मल्टीपल डेटा नेम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना हो, उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर स्टोर डेटा इन कंटेनर्स कॉल्ड फील्ड्स। मतलब जो नेम्स होते हैं उसको हम कंटेनर्स बोलते हैं। डिफरेंट कंटेनर में डिफरेंट काइंड ऑफ हम डेटा सेव कर सकते हैं, और डेटा को सेव करना हो या एक्सट्रैक्ट करना हो तो डॉट नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है? इन दिस केस ये जो पेशेंट है, लेट्स से कि एक पेशेंट का मुझे पूरा बायोडेटा बनाना हो कि कितना बिलिंग हुआ, पेशेंट का नाम क्या था, कितने डोजेस लिया, लेट्स से। इस केस में पेशेंट क्या है? स्ट्रक्चर हो गया पेशेंट डॉट नेम, ये पेशेंट नेम हो गया। पेशेंट डॉट बिलिंग, ये बिलिंग हो गई पेशेंट की। कितने टेस्ट हुए? पेशेंट डॉट टेस्ट। तो ये सारे फील्ड नेम्स हो गए, ये हो गया स्ट्रक्चर नेम हो गया। और या नेम, बिलिंग और टेस्ट को हम कंटेनर भी बोल सकते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो ये फील्ड नेम को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम डॉट यूज करते हैं, ठीक है? परफेक्ट। तो एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं यहाँ पे।
ओके, लेट्स डिजाइन द स्ट्रक्चर. लेट्स से कि एक मुझे बायोडेटा बनाना है एंड लेट्स से द नेम ऑफ अ पर्सन इज रवि. तो इस केस में रवि क्या होगा? स्ट्रक्चर. ओके, तो रवि का बायोडेटा बनाना है. ठीक है, तो डॉट यूज करेंगे और फील्ड नेम देंगे. तो रवि का एज लेट से मुझे सेव करना हो, ही इज 12 years old लेट से, और लेट से 25 years old. ओके, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन यूज किया. तो सेमी कॉलन यूज किया तो ये वेरिएबल तो एग्जीक्यूट हो गया और ये स्ट्रक्चर दिखा भी रहा है कि स्ट्रक्चर है, बट इसमें शो नहीं हो रहा. मैं सेमी कॉलन यूज नहीं करूंगा, एग्जीक्यूट भी होगा और विजिबल भी होगा. तो कभी सेम आई सजेस्ट ऑलवेज यूज सेमी कॉलन. कभी कभी मैट्रिक्स में डेटा काफी बड़ा होता है तो काफी टाइम लेता है डिस्प्ले होने में, सो ऑलवेज यूज सेमी कॉलन. ओके, रवि का एज हो गया एंड लेट्स से रवि डॉट निक नेम. मुझे निक नेम भी सेव करना है रवि का, तो लेट्स से निक नेम इज सैम, समथिंग लाइक दैट. अब इसमें अब देखो दोनों क्या हो रहा है, व्हाट वी आर डूइंग हियर. सॉरी, ये सिंगल और ये भी डबल कोट में होगा, सिंगल डबल दो नहीं हो सकता. ओके, इसमें अब देखो ये जो हमने 25 डिफाइन किया ये डबल में है, ये न्यूमरिक डेटा है ना, और जो हमने सैम राइट किया वो स्ट्रिंग में है. तो स्ट्रक्चर इज द वे टू सेव मल्टीपल क्लास डेटा टाइप्स. डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स हो सकते हैं, तो उस केस में हम स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं और सेल भी यूज कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे, है ना. तो ये निकनेम सेव हो गया. अगर रवि का मुझे हाइट भी लेट से सेव करना है, लेट से ही इज 5.8. फाइन. रवि का इमेज भी मुझे सेव करना, हाउ रवि लुक्स लाइक, है ना. तो ये मैटलैब में एक फंक्शन है इमेज रीड करने के लिए जिसको बोलते हैं इम रीड, और आई एम रीड भी बोल सकते हो आप इसको. इसमें अब इसमें एक इमेज मैं रीड कर रहा हूं, तो इमेज का नाम क्या है? कैरेक्टर है या तो स्ट्रिंग है, राइट. तो इस जब भी आप कैरेक्टर राइट करोगे सिंगल कोट में या डबल कोट में राइट कर सकते हो. तो मैं एक इमेज रीड करता हूं, ये वाला, और ये इमेज भी राइट हो गया. इमेज अनसाइन इंटीजर 8 बिट्स में होता है. ठीक है, रवि डॉट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेट्स से क्वालिफिकेशन आल्सो मैं सेव करता हूं, लेट्स से ग्रेजुएटेड, राइट. इस केस में क्या हुआ कि हमने एक बायोडेटा में से बना सकते हैं, या मतलब दिस इज जस्ट अ डेमो कि हम बायोडेटा बना रहे हैं. आप डिफरेंट फील्ड नेम भी सेव कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू. अब जैसे मैं यहाँ पे रवि टाइप करूंगा तो ये सारा इसमें शो कर रहा है. सी, एज, निक नेम क्या है, हाइट क्या है, इमेज क्या है एंड क्वालिफिकेशन क्या है. ठीक है, सिर्फ मुझे इसमें से एज डिटेक्ट करना हो, डॉट मैं क्या करूंगा, डॉट और टैब प्रेस करूंगा. ये ध्यान रखना आप, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये मेथड्स नहीं है, ये फील्ड नेम है, ये वेरिएबल नेम से. तो दिस इज डिफरेंट देन ऑब्जेक्ट. मुझे एज एक्सट्रैक्ट करना है, एज आ गया. हो सकता है कि एज मैंने गलत डाल दिया, लेट्स से कि एज वाज नॉट 25 इट वाज 30, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, राइट. तो इसी तरह रवि डॉट निकनेम आ गया. तो इसका एप्लीकेशन क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपके पास मल्टीपल डेटा टाइप्स हो, स्ट्रक्चर भी हो, न्यूमेरिक डेटा भी हो, तो उस केस में आप स्ट्रक्चर यूज करके आप सारे को एक साथ सेव कर सकते हो, है ना. तो अब इसमें रवि डॉट अगेन टैब, ओके दैट इज अ कैपिटल रवि, रवि डॉट टैब. मुझे क्वालिफिकेशन देखना है रवि का, तो दैट्स ग्रेजुएटेड, राइट. अब मुझे ये इमेज भी देखना है, ये इमेज, ये मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज इसमें 384 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 512 है, और 3 मैट्रिक्स है इसमें, है ना. तो इमेज विजुअलाइजेशन के लिए IM शो यूज करते हैं. और ये इमेज कहाँ पे है, ये इमेज कहाँ पे है, ये इमेज रवि डॉट इमेज पे है. दिस इज द वेरिएबल नेम. मैंने कहीं ना कहीं मशीन के मेमोरी में सेव होगा किसी एड्रेस पे, और उसको हम इससे डिनोट कर सकते हैं, रवि डॉट इमेज. यहाँ पे मेरा इमेज सेव है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ. नाउ दिस इज द इमेज. ओके, सो दिस इज नॉट अ रवि, एक्चुअली दिस इज अ वेजिटेबल. जस्ट आई वाज शोइंग यू कि हम कैसे इमेजेस को भी सेव कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम कैसे सेव कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर इन मैटलैब. स्ट्रक्चर हमेशा डॉट यूज करेंगे,
या डॉट यूज करके हम सेव भी करते हैं, डिजाइन भी करते हैं, और डॉट यूज करके हम फिर से कॉल भी करते हैं उस वेरिएबल को. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेल वी आर गोइंग टू से. ओके, सो एनीथिंग विच वी राइट इन अ कर्ली ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड सेल. कर्ली ब्रैकेट में जो भी आप राइट करोगे उसको हम सेल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सेल मैं क्रिएट करता हूं, कर्ली ब्रैकेट, परफेक्ट. यहाँ पे भी हम मल्टीपल डेटा टाइप सेव कर सकते हैं, जैसे हाई आई एम यूजिंग मैटलैब, है ना. ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया क्योंकि डबल कोट में है. ओके, फिर उसके बाद कुछ वैल्यू सेव कर देते हैं. ये क्या है, ये न्यूमरिक वैल्यू भी हमने सेव कर दिया. देन कॉमा, लाइक जैसे मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे थे न्यूमरिक का, एज इट इज हम सेल राइट कर रहे हैं, बट इसमें कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, राइट. ओके, इसमें और भी कुछ हम सेव कर सकते हैं. इमेज, okay, sorry, I am read open bracket then image name. Okay, so image भी सेव कर सकते हैं इसमें. Okay, ये फर्स्ट नेम कॉमा, इसमें कॉमा देना जरूरी है ना. ये दिस वन, दिस इज द स्ट्रिंग, ये मेरा न्यूमरिक वैल्यू हो गया और ये इमेज हो गया, राइट. देन ब्रैकेट क्लोज. नाउ यू सी सेल्स क्रिएट हो गया. ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इसमें 3 इंडेक्स है. तो ये इंडेक्स नंबर 1 पे है, ये इंडेक्स नंबर 2 पे है, ये इंडेक्स नंबर 3. तो जिसे मैं सेल, अगर मुझे पता करना है कि इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, तो हाई आई एम यूजिंग मैटलैब. इसी तरह इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, ये है, राइट. तो इसको सेल बोलते हैं. टिल नाउ एनी क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. तो ये सेल बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, जैसे मुझे लूप लगाना हो और इंडेक्स वाइज डेटा को कॉल करना हो, तो उसकी जगह वहां पे हम सेल यूज कर सकते हैं. स्ट्रक्चर सेव करने के लिए, मल्टीपल डेटा टाइप्स वेरिएबल्स मुझे सेव करना है, तो वहां पे हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन? ओके, देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट. एक मैट्रिक्स मैं क्रिएट करता हूं फिर से दोबारा. ओके, ये मैट्रिक्स है. इसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है, ये जो 4 है ये इंडेक्स नंबर 1 पे है. एक मिनट, ये है, सॉरी, ये है ना, ये जो है इंडेक्स नंबर 1 पे है, ये इंडेक्स 2 है, ये एट इंडेक्स नंबर 3 पे है. इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं. रो कौन सा है, ये रो 1, कॉलम आल्सो 1, राइट. इसकी इंडेक्सिंग हम रो कॉलम बेस भी कर सकते हैं या इस टाइप से भी कर सकते हैं. ये इसमें रो कौन सा है, ये रो नंबर 2 है एंड कॉलम नंबर 1, राइट. ऐसे कर सकते हैं इंडेक्सिंग. ये इंडेक्स नंबर 1 2 3, देन दिस विल बी एट 4, this is at index number 5, this is at index number 6, this is 7, this is 8, and this is index number 9. Okay, so let's call some values according the index. अगर मुझे पता करना है इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, 1, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, that is 4, या इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है, 5 पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, that will be 2. या इसी मैट्रिक्स में जो इंडेक्स नंबर 5 पे है उसको रिप्लेस करना है लेट्स से कि 20 से, तो ये जो 2 है ये 20 से रिप्लेस हो जाएगा, राइट. यह हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, मुझे इंडेक्स नंबर 1 से 5 तक सारे वैल्यू चाहिए, लाइक दिस. ये इज द मैट्रिक्स, स्टार्ट इज 1, 1 से लेके 5 तक सारे वैल्यू चाहिए, ये आ गया, है ना. या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इसमें स्टेप साइज दे दूं. मुझे जो वैल्यू चाहिए इसको मैं समझाता हूं. 1 से स्टार्ट हो, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट हो, फिर उसके बाद 2 ऐड हो जाए, उसमें 3 से स्टार्ट हो, ऐसे करके 2 ऐड होता जाए. तो दिस इज अ स्टेप साइज. दिस इज माय फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज द लास्ट इंडेक्स एंड दिस इज द स्टेप साइज. मतलब 2 उसमें से हम
रिमूव कर रहे हैं, हर दो के बाद हम उसमें वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, आई मीन वैल्यू को कॉल कर रहे हैं। इस केस में दिस विल बी द वैल्यू। ओके, तो इस केस में आप देखोगे क्या हुआ, 4 था, ये 3 स्कीप हो गया, 5 आया, ये 5 एक स्कीप हो गया और ये 20 आ गया। ठीक है, मतलब 4 के बाद ये स्कीप हुआ 3, 5 आ गया सेकेंड वन, देन ये 5 स्कीप होके 20 आ गया। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये एक ही बात होगी जो मैंने फर्स्ट वाला जो मैंने कॉल किया था, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ओके, सॉरी यहाँ पे 10 मैंने कर दिया, 1 to 5 होगा। ओके, लाइक दिस। या हम इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, ए के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे क्या वैल्यू है। तो इस मैट्रिक्स में आप देखोगे जो हमने क्रिएट किया था ऊपर, ये वाला फर्स्ट रो ये है, राइट, और थर्ड कॉलम दिस वन। सो लेट मी शो यू लाइक दिस, just 1 minute, just wait, Control Z, this, ये जो है फर्स्ट रो है, राइट, एंड सेकेंड थर्ड कॉलम, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया था ना थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम क्या है, ये है, राइट। तो इसमें से हमें कौन सा वैल्यू आएगा, जो इंटरसेक्शन वाला होगा, 6, राइट। सो सेम थिंग वी आर डूइंग हियर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 आ गया, या फर्स्ट रो से लेकर के 2 से 3 कॉलम, एक बार इसको चेक करते हैं। ये यहाँ पे ये फर्स्ट रो 2 to 3 कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम। इन दिस केस ये इसमें से इंटरसेक्शन क्या आया, 5 and 6। तो इस केस में नीचे क्या आएगा, 5 and 6, राइट। यहाँ पे 2 to 3, राइट, सॉरी यहाँ पे दो मेंशन कर दिया, जस्ट 1 minute, 2 to 3, नाउ इट इज फाइन, राइट। सो 5 and 6, राइट। ये जो 5, 6 है, इसको रिप्लेस करना है किसी और वैल्यू से, तो मैं चाहता हूं कि ये जो दो वैल्यू है ये 0 से रिप्लेस हो जाए। सो सिंपली इट इज रिप्लेस बाय 0। या ये जो दो वैल्यू है मैं चाहता हूं कि ये 3 और 4 से, अगेन 2 वैल्यूज आई एम राइटिंग, इट विल बी इन स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये 3 और 4 से रिप्लेस हो जाएगा। लाइक दिस वे वी कैन replace the value, we can extract the value from there. Any question? Okay, now there are some inbuilt function in MATLAB to create different kind of matrix, like I command is used for the identity matrix. So simply if I give I command and let's say 3 rows and 3 columns, it will create an identity matrix. Same way अगर मुझे ऐसी मैट्रिक्स क्रिएट करना हो जो सारा वन उसमें हो, 3 rows and 4 column, राइट, ऐसा कोई मैट्रिक्स क्रिएट करना हो जिसमें सारी वैल्यू जीरोस हो, ZEROS 0, so different ways are there, you can use zeros, ones, random, that is uniformly distributed random numbers, true, logical one we already saw, we saw, right. So this is the way how to write okay in MATLAB, this is the way, this okay. There are different numbers, and next these are mathematical functions. आप जब ये कमांड दोगे doc-elfun, it will tell you how many elementary functions are in MATLAB. So let me give this command. This is another way to get help. elfun, elfun means elementary function, this is a short name, ये short name है उसका। जितने भी elementary functions हैं ट्रिग्नोमेट्री के या अर्थमेटिक के, जितने भी functions हैं, उसका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा ऑफलाइन। नाउ यू सी साइन हमने देखा था, राइट। साइन डी कब यूज करेंगे, जब इनपुट आर्गुमेंट डिग्रीज में हो। जिसे मैं साइन डी पे क्लिक करता हूं, मुझे देखना है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। जस्ट आई विल क्लिक ऑन दिस एंड हियर इज द एग्जांपल विद डॉक्यूमेंटेशन, राइट, सिंटैक्स, डिस्क्रिप्शन एंड बिलो एग्जांपल। सो यू सी हियर दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं साइन डी 90 करूंगा तो क्या आएगा,
1 आएगा, राइट। सेम अगर मैं साइन यूज करूंगा, इसमें 90 लिखना हो रेडियन में, तो पाई लिखते हैं मैटलैब में। पाई इज द 3.14 पाई डिवाइड बाई 2, राइट, दैट इज अगेन 1। बट इसमें डिफरेंस है, 90 करूंगा तो ये रेडियन में है, ये 1 नहीं होगा, दैट इज इन रेडियन, राइट। ऑपरेटर्स, जो हमने ऑपरेटर्स देखा, पावर देखा, प्लस देखा, डिवीजन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, डॉक स्पेस ओपीएस, आप इसको नोट भी कर सकते हो, डॉक स्पेस ओपीएस, इट विल शो यू हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर देयर। कोई भी ऑपरेटर्स आपको देखना है with example, just click on the link and you will get that. So it is taking a little time. ये आ गया है ना ऑपरेटर, जैसे प्लस है या माइनस है ना। तो जैसे ये मैं प्लस पे, लेट से माइनस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसका प्रॉपर ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। परफेक्ट, ओके। लेट मी स्विच हियर अगेन। Okay, these are the some stats function, statistics functions there. Maximum find out करना हो, minimum find out करना हो, mean value find out करना हो, median, mode, standard deviation. So these are inbuilt function in MATLAB. This is for the largest value, this is for the smallest value, this is for the average value, this is for the median value, this is mode frequent values, standard deviation, variance, sum, product. Try करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, जिसे मैंने जो ये a डिफाइन किया था हियर समवेयर, दिस, जस्ट लेट मी गो इन द हिस्ट्री। ये a, अगर a को पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कॉलन, ये मैं कमांड दूं तो ये सिंगल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप, अगर किसी मैट्रिक्स को सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करना है तो मैट्रिक्स नेम, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, कॉलन एंड ब्रैकेट क्लोज, ओके। ये a है, इसमें से अगर मुझे मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो मैक्स ऑफ, अगर मैं सिर्फ मैक्स ऑफ a लिखूंगा तो क्या होगा इस केस में, कॉलम वाइज मैक्स वैल्यू मिलेगा मुझे, कॉलम वाइज मैक्स वैल्यू इज देयर, ओके। इसमें a की जगह मुझे एक सिंगल मैक्स वैल्यू चाहिए पूरे मैट्रिक्स से, तो मैं क्या करूंगा, ये पहले मैंने इसको क्या किया, कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सिंगल कॉलम, राइट। फिर उसका मैं मैक्स ले रहा हूं, तो ये सिंगल वैल्यू जिसमें हाईएस्ट है दैट इज 6 विल बी एग्जीक्यूटेड। मुझे ये भी पता करना है कि ये किस इंडेक्स पे है, तो पहले तो यहाँ पे मैक्स आएगा एंड IDX इंडेक्स, ओके, एट इंडेक्स नंबर 6 लाइक दैट, ओके। सेम वे अगर मुझे मीन फाइंड आउट करना हो मैट्रिक्स में कॉलम वाइज, दैट इज कॉलम वाइज, रो वाइज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना हो इस मैट्रिक्स में, दैट मैट्रिक्स कॉलम वाइज इट इज, राइट। अगर मुझे पूरे मैट्रिक्स से स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए like this, and that's the standard deviation, right? Mean, average value of a column wise, अगर मुझे पूरे मैट्रिक्स से एवरेज चाहिए, पूरे मैट्रिक्स में जितना डेटा है सारे का एवरेज चाहिए, सो सिंपली इससे मैं सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर लिया एंड दैट्स द मेन वैल्यू फॉर दैट, राइट। वेरिएंस फाइंड आउट करना है, वेरिएंस ऑफ ए, दिस इज द वेरिएंस ऑफ द मैट्रिक्स, ओके, कॉलम वाइज। मोड फाइंड आउट करना हो, सिंपली दैट्स द मोड ऑफ द मैट्रिक्स। सो ऑल दिस फंक्शंस इन अ सिंगल लाइन, याद करने की भी जरूरत नहीं है। वेरिएंस के लिए हम वो सिंपल नोटबुक में यूज करते हैं, मीन ऑलरेडी वी नो दैट इज एवरेज, राइट। These are different kind of plots we are going to see. ये कुछ प्लॉट्स देखते हैं, जैसे स्केटर प्लॉट हो गया, बार हो गया, स्टेम हो गया, स्टेयर हो गया, एरिया हो गया, पाई, हिस्टोग्राम। हाउ वी कैन प्लॉट दिस काइंड ऑफ प्लॉट्स वी कैन डू इन आवर डेटा, ओके। एक काम करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं एवरीथिंग। एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं मैं, न्यूमेरिक एरे, दैट इज अ वेक्टर। लेट्स से इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टेप साइज इज 0.1, or let's say okay 0.1, step size is 0.1, and colon total value we are going to take 3. It means first value is 0, second value will be 0.1, third value
0.2, then 0.3 till 3. This is the A. This is the first value. So this is the T start. मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसका मतलब क्या है. A is equal to, ये स्टार्ट टाइम हो गया है ना, देन स्टेप हो गया है ना. इसको हम ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, स्टेप एंड देन टी कॉलन टी इंट, ऐसे. तो जब भी अगर सिंगल लाइन में एरे क्रिएट करना हो, अगर आपको सैम्पलिंग टाइम पता हो तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो. स्टार्ट स्टेप विल बिकम अ सैम्पलिंग टाइम एंड दिस इज द टी इंट, है ना. तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. नाउ वी हैव ए. Let's say I'm going to write one equation with a, that is a. Here a I will give as input. Now we have y. A is the x-axis. या एक काम करते हैं, नो इट्स ओके, a is the x-axis, y is the y-axis. इसको मुझे प्लॉट करना है. तो ये वेरिएबल मेरा यहाँ पे है. सबसे पहले x-axis को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके एंड देन y-axis. बोथ आर सिलेक्टेड, राइट. फर्स्ट x-axis देन y-axis. फिर इसके बाद इस प्लॉट में जाएंगे. इस डेटा के लिए जितने भी सपोर्टेड प्लॉट्स हैं ये विजिबल हो जाएगा. सिंपली मैं प्लॉट कमांड दूंगा, ये आ गया साइन, जो भी है 0 to 3 जितने भी वैल्यूज है उसका साइन है ना. एरिया प्लॉट करना है, सिंगल लाइन कमांड एरिया प्लॉट, राइट. मल्टी प्लॉट मतलब वो x भी प्लॉट हो जाए और y भी प्लॉट हो जाए, मतलब x पे ना होके दोनों y पे हो, तो उस केस में ये यूज कर. या बार प्लॉट करना है, that's a bar plot, see like this, right. Scatter plot करना है, simply see that is the scatter plot. Semi log y मतलब हमारा जो y एक्सिस है वो log के फॉर्म में हो, see. Semi log x जो x एक्सिस है वो log के फॉर्म में हो, परफेक्ट. स्टेम प्लॉट करना है, स्टेम प्लॉट. स्टेयर प्लॉट करना है, स्टेयर प्लॉट. अब ये याद करने की जरूरत नहीं है. यू सी, अगर भाई कमांड आपको करना है प्लॉट, सिंपली प्लॉट. प्लॉट एरिया. bar plot, simply bar. Scatter plot, just you have to write the scatter. Semi-log y, semi-log x, stem plot, stair plot, right. We don't have to remember. Single line plot. इसी को मुझे plot करना है, simply मैं plot भी लिख सकता हूँ, right. And a comma y, पहले x axis फिर y axis और ये plot हो जाएगा. See, that's the plot for that. Okay. So we saw different kind of plots. About live script, and we are going to develop some kind of algorithms also, and we will see how to import data. What is live script? Live script and live functions are interactive documents that combine MATLAB code with formatted text, equations and images in a single environment called the live editor. मतलब ऐसा स्क्रिप्ट फाइल जिसमें हम इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, जिसमें हम रेफरेंस पर्पस इक्वेशंस राइट कर सकते हैं, जिसमें हम आउटपुट भी विजुलाइज कर सकते हैं. ओके, लाइक दिस इट विल बी. यू सी, दिस इज द फर्स्ट वन सेक्शन, दिस इज सेकेंड सेक्शन. इसमें आप देखोगे ये जो रिटर्न है, दिस आर द टेक्स्ट, इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं. और ये जो टेक्स्ट रिटर्न है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, ये आपके रेफरेंस के लिए होगा. मैटलैब विल नॉट नो दैट व्हाट इज रिटन देयर. दिस इज द कोड. ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये ग्रे कलर, so that here that is the code, text. Like this we can format, and here we can visualize the graph as well. Perfect. Okay, we can add images also like this, and we can add equations also like this. Here, see, there is the equation, right, and this is the image, right. We can add images and equations in there also like this. अच्छा, अगर आप अर्लियर वर्जन यूज करोगे तो उसमें लाइव स्क्रिप्ट नहीं है, उसमें सिर्फ प्लेन कोड स्क्रिप्ट फाइल है, लाइक दिस. हियर यू कांट सी द इमेजेस. जैसे आउटपुट देखना है तो डिफरेंट विंडो में आएगा, फिगर्स देखना है तो डिफरेंट विंडो में आएगा, बट लाइव स्क्रिप्ट में सेम विंडो में ही आएगा. सो टुडे इन दिस सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, राइट इक्वेशन इन मैटलैब, 2D plot, 3D plot, surface plot, data import, export and visualization. So all this in this 30 minutes which are remaining, we are going to see. Writing the equation in MATLAB, 2D plot, 3D plot, surface plot and data import, export and visualization. अगर data file में उसको export and import कैसे कर सकते हैं. So I am going to switch here in MATLAB, and from here I am going to clear.
Okay, now I am going to use the live script. So here is the script file. This is a plain text file. Okay, and this is the live script. I am going to choose live script here. आप ये भी चूज कर सकते हो या लाइव स्क्रिप्ट भी चूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. ओके, ये ग्रे कलर दिख रहा है, यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं. सिंपली इफ आई राइट a इज इक्वल टू 45, इसको मुझे रन करना है तो ये लेफ्ट साइड में ब्लू स्ट्रिप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करोगे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 45 आ गया, राइट, आउटपुट. लेकिन मुझे पहले टेक्स्ट लिखना है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम हियर. यहाँ पे ऑप्शन है ना, जब भी टेक्स्ट लिखना है आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है यहाँ से. ओके, तो ये आ गया टेक्स्ट. आई एम गोइंग टू डू 2D एंड 3D प्लॉट्स. इसको फॉर्मेट भी मैं करना चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट को, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, इसको टाइटल देना, मैं टाइटल दे दूंगा. नाउ 2D प्लॉट, एक हेडिंग देना है यहाँ पे मुझे, लेट्स से 2D प्लॉट. तो सबसे पहले मैं इसको टाइप कर लेते हैं 2D प्लॉट्स. 2D प्लॉट से स्टार्ट करते हैं. इसको भी अगर मुझे हेडिंग देना है तो यहाँ से मैं जाऊंगा एंड हेडिंग 1 दे दिया, है ना. तो ये टेक्स्ट है, जब आप एग्जीक्यूट करोगे दिस विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड, दिस इज फॉर आवर रेफरेंस ओनली. अब इसमें टेक्स्ट लिखना है सिंपल x and y प्लॉट. So we can write the text also like this, right? और यहाँ से ये जो है, यहाँ से मुझे सेक्शन में ब्रेक करना है, मतलब ये सिंगल सेक्शन में है ना, मुझे इसको 2 सेक्शन में करना है. तो यहाँ पे मेरा कर्सर है एंड देयर इज ऑप्शन इज सेक्शन ब्रेक, यहाँ से सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट हो गया. अब मुझे कोड लिखना है यहाँ पे, तो सिंपली देयर मूव योर कर्सर हियर, जहाँ से कोड स्टार्ट करना है आपका कर्सर वहां पे होना चाहिए, फिर यहाँ से कोड सिलेक्ट करना है. नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन. अब इसी में मुझे जो इक्वेशन राइट करना है, ये मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ पूरा, फॉर्मेटिंग. तो इक्वेशन राइट करना है तो मैं इंसर्ट में जाऊं, ये इक्वेशन रेफरेंस पर्पस राइट करना, नॉट एज अ कोड, रेफरेंस पर्पस. क्या इक्वेशन हम डिजाइन करने जा रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं लाइव एडिटर के इंसर्ट में गया. इंसर्ट में देयर इज ऑप्शन इक्वेशन. सो आप सिंपल इक्वेशन भी लिख सकते हो, आप लेटेक्स इक्वेशन भी लिख सकते हो. मैं आई एम गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन. ओके, सो नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन. व्हाट वी आर गोइंग टू design, simple equation I am going to design. Y is equal to a sin 2 into pi into f into t. Okay, this is my equation, and here I can write where a is equal to 10, f is equal to 2, and t will be between 0 to 5. Perfect. And this is for my reference now. Now this is the text. Now I am going to write equation here. Okay, so if I have to write the equation, first of all we have to define t. Okay, one thing more here, sampling time. Fs is equal to, let's say it is 100 hertz. Okay, so these are in hertz. 2 is also in hertz because this is a periodic signal simply. So this is also in hertz. Okay. Fine, perfect. So we have sampling frequency, we have signal frequency, everything we have. Now we are going to define the equation. So सबसे पहले fs is equal to 100. Okay. अब यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, यहाँ if you want to write a text here also use this sign. So I am going to write sampling frequency. परसेंटेज साइन करके हम स्टैक. सो अगेन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये रन नहीं होगा, दिस इज आल्सो टेक्स्ट, और ये सारा एक भी रन नहीं होगा बिकॉज दैट आर आल्सो टेक्स्ट फॉर आवर रेफरेंस. दिस इज कोड इन द ग्रे कलर. ओके, नाउ सिग्नल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेंशन है 2 हर्ट्ज. एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, जैसे आज आपने एल्गोरिथम डेवलप किया, अगर आप ये कमेंट्स एंड टेक्स्ट नहीं लिखोगे तो 1 महीने बाद भूल जाओगे कि उसमें हो क्या रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now amplitude is given, that is 10. Anything more which are remaining? Time. अब मेरे पास सैम्पलिंग टाइम है, जैसे आप कभी डेटा लॉग करते हो तो ड्यूरेशन होता है, जैसे आज फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, लाइक दिस, राइट. तो अगर मेरे पास सैम्पलिंग टाइम है दैट इज 1000 हर्ट्ज, तो सॉरी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तो सैम्पलिंग टाइम क्या हो जाएगा 1/fs.
तो एक टी क्रिएट करते हैं यहाँ पे, 0 से स्टार्ट होगा और स्टेप साइज क्या होगा, सैम्पलिंग टाइम, सो 1 डिवाइड बाई एफ एस परफेक्ट, एंड लिमिट इज 5, राइट, टिल 5 सेकेंड्स। ओके, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एक कमेंट इन सेकेंड्स, वेरी सिंपल। Okay, now we are going to write a equation. Y is equal to A into asterisk is multiplication, right? Then sign 2 into pi into f into t. That's the equation. And now to plot this, plot t comma y. Because t is x-axis and y is y-axis in this case. So basically what we are doing, we created a mathematical equation to create data, and then we are plotting that data. हमने एक mathematical equation लिखा data create करने के लिए और उस data को हम plot कर रहे हैं. That this is the sine wave. मुझे x-axis, y-axis और title देना है. तो for the x-axis here, x label, okay, x label that is let's say time. Y label, let's say that is amplitude, and also I want to give a title, let's say it is sine wave. Perfect. So now I will get the here time, x label of y, and this is the title. Okay, one thing more, yeah, this is the equation. Modification, customization of graph we will see later in the next session when we have. Okay, right now we are not going to customize this. Now section break. Now I am going to write text here. This is default as a code. Okay, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3D plot, let's say if I write this and if I execute this, अब ये code के form में it will give me an error because this is not any variable here. This is a text, and 3D plot, these are not defined. That's why. So I have to convert this as a text from here because this is for my reference, and I am going to make it as a heading 1. That is 3D plot we are going to do. Okay, for 3D here I can write something like that. For 3D we here require x, y, and z data. So let's write the equation first to create the x, y, z data here. Okay, so now I have to write a code. So simply I am going to select code. Now you see we require x, y, and z data in this case. Okay, x is x t है let's say, and y is y. एक z create कर देते हैं यहाँ पे, है ना. Z is equal to, let's say this is cos of 2 into pi into f into t. एक साइन हो गया, एक कॉस हो गया. हमने एक डेटा क्रिएट कर लिया यहाँ से. ओके, अब इसको 3D प्लॉट के लिए इंस्टेड ऑफ प्लॉट सिर्फ प्लॉट दूंगा तो ये 2D प्लॉट होता है, 3D के लिए प्लॉट 3. देन x एक्सिस डेटा, y एक्सिस डेटा एंड z एक्सिस डेटा, राइट. और लेबल देना है तो वी कैन गिव लेबल हियर. तो मैं क्या करता हूँ कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. अगर लेबलिंग भी करना हो तो जस्ट सिंपली हियर लेबल. सो x लेबल इज टाइम, दिस इज नाउ साइन, राइट. ये साइन हो गया ना, y साइन हो गया, एंड एक z लेबल भी आएगा. सो z लेबल इज cos, टाइटल let's say this is 3D helix, because when I plot this it will be a helix. See, perfect. That's the 3D plot of data. Simply what we are doing, we are creating equation, then we are from the equation we are generating data, and that data we are plotting here. Perfect. Section break. Now we are going to import data here in MATLAB, and we are going to do analysis on imported data. So in this case your data can be any file format. Let me show you how to do that kind of task. मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे CSV फाइल में. Okay, this is the .csv file here we have in this data, but I don't know in MATLAB how to import this data. Let's say I don't know the function. So in that case what we can do, there is a import tool. Okay, and select your
file, whatever the file you want to import in MATLAB. So if I scroll this, and here you can see that different kind of file formats are supported, right? I am going to use this data. Okay, before that, let me show you that what kind of data are available open outside the MATLAB. So we have data. These are the column names: car and truck data, engine display, engine of the data, rated horsepower of the vehicles, okay, weight of the vehicles, lots of things are available here. See, है ना, काफी सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको import कर रहे हैं. So I'm going to close this and I'm going to switch here. So once I will click this import tool, and when I select our data, new window will be open like this. So I recommend, there are different ways to import different format table. So this as it is, जो आपको CSV फाइल में दिख रहा था और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, as it is it will be imported in MATLAB. Remember, okay? Column vectors मतलब सारा जो इसमें कॉलम्स दिख रहे हैं उसके डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे. न्यूमेरिक मैट्रिक्स आप तब चूज करोगे जब ये सारा डेटा न्यूमेरिक हो तो सिंगल मैट्रिक्स में आ जाएगा. स्ट्रिंग पता है आपको, सेल भी पता है आपको. आई एम गोइंग टू चूज टेबल बिकॉज मुझे ये सारे नेम भी चाहिए कॉलम के, और वो सिर्फ टेबल में ही आ सकता है ना. आई एम गोइंग टू टेक दिस. ओके, नाउ हियर, okay, do one thing, let me clear everything from here and import this again. Okay, I'm going to import this again. Now here I have this table, right, in MATLAB, and once we have in MATLAB, एक बार MATLAB में आ गया, then we can access any column from there. Okay, so what I am going to do here, मुझे कोई इसमें से वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करना है. लेट्स से कि मुझे रेटेड हॉर्स पावर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे HP में सेव करता हूँ. ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, टेबल नेम है, राइट. तो सबसे पहले टेबल नेम लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले टेबल नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सा कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से आप चेक कर लोगे, है ना. तो लेट्स से कि मुझे रेटेड हॉर्स पावर एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये रेटेड हॉर्स पावर आ गया, है ना, HP में सेव हो गया. तो नाउ यू सी इन HP वी हैव रेटेड हॉर्स पावर. मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब ये रेटेड हॉर्स पावर देख सकते हो, रेटेड हॉर्स पावर इज एक्सट्रैक्टेड. ओके, नाउ इसमें और क्या है, फ्यूल इकोनॉमी, दैट इज माइलेज ऑफ द कार. ओके, तो इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं MPC. ओके, देन पहले क्या, टेबल नेम. तो टेबल नेम यहाँ पे वर्क स्पेस में दिख रहा है, यहाँ पे कार डेटा इज द टेबल. अब इसमें से कौन सा कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, फ्यूल इकोनॉमी. सो फ्यूल इकोनॉमी आई हैव, राइट. सो आई हैव दिस बोथ डेटा. एक और काम करते हैं, इसमें ये भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. ओके, सिटी एंड हाईवे, दैट इज स्ट्रिंग डेटा, कैरेक्टर डेटा, कैटेगरिकल डेटा. ओके, so what I'm going to do here, if a vehicle is driving in city or highway, ये वेरिएबल नेम दे दिया. देन अगेन कार डेटा, है ना, कार डेटा डॉट नाम क्या था, सिटी हाईवे. अब चूंकि ये जो है कैटेगरी में है, इसको कैटेगरिकल में कन्वर्ट कर, ऐसे भी आप इंपोर्ट कर लोगे, कोई इशू नहीं है. जस्ट सिंपली इंटर दिस एंड इट इज इंपोर्टेड, राइट. इट इज ऑलरेडी इन कैटेगरिकल. ओके, now I am going to plot, mileage with respect to horsepower. So MPG, that's not perfect. इस प्लॉट पे आप देखो, x एक्सिस पे हॉर्स पावर है, y एक्सिस पे माइलेज है. अगर मेरा डेटा नॉन लीनियर हो तो कभी भी लाइन प्लॉट में वो प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं होता. हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब यहाँ से हम कोई भी इनसाइट्स नहीं ले सकते, क्योंकि x एक्सिस पे माइलेज है. एक मिनट, एक्स लेवल, सॉरी एक्स लेवल, एक्स एक्सिस इज हॉर्स पावर. ओके, नाउ वाई लेवल इज माइलेज. इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा. ये रेंडमली डेटा प्लॉट है, लाइन प्लॉट है, काफी जिगजैग है. इस केसेस में, जब ऐसे केसेस हो, जब नॉन लीनियर डेटा हो, always do scatter plot. Now you see, now we can say that some relations are there with respect to, I mean mileage with respect to horsepower. On x axis we have horsepower,
On y-axis we have mileage. We can say that when horsepower is increasing, then mileage is also increasing somehow, right? We can say तब भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है इसमें से, तो एक काम कर सकते हैं, ग्रुप स्केटर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं जी स्केटर। इसके पहले मैं आपको दिखा दूं ये सिटी हाईवे में है क्या। सिटी हाईवे में क्या है कि इफ दैट व्हीकल्स आर ड्राइविंग इन द सिटी, या तो सिटी में ड्राइव कर रहा है या हाईवे में ड्राइव कर रहा है, वो डेटा मेरे पास है सिटी या हाईवे में। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी ग्रुपिंग करते हैं, फिर माइलेज चेक करते हैं, है ना। तो इसमें एक कमांड है जी स्केटर, इसको ग्रुप स्केटर बोलते हैं। या मैं एक काम करता हूं, जो ऊपर मैंने स्केटर प्लॉट किया था समवेयर हियर, राइट, इसी को जी स्केटर कर देते हैं, इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, सिटी हाईवे के अकॉर्डिंग। ओके, मतलब ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग द इफ अ व्हीकल इज ड्राइविंग इन द सिटी और हाईवे। ओके, नाउ लेट्स सी, अब रिलेशन दिख रहा है, देखो आप इसमें जो ये ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर यहाँ पे है ना, तो ये ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है कि ये हाईवे पे ड्राइव कर रहा है। हाईवे पे ड्राइव है तो माइलेज कम दिखा रहा है, या सिटी में ड्राइव कर रहा है तो माइलेज ज्यादा दिखा रहा है, ऐसा कुछ। बेस्ड ऑन दिस कलर, राइट, वी कैन डिफरेंशिएट दैट डेटा, मतलब इसकी क्लस्टरिंग कर दिया ग्रुप स्केटर। परफेक्ट। So this was about the data, and one thing more here about these things. I am going to save this and I am going to name the CSV file. Okay, whatever I have done till now, and if I go here in save as, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डिफरेंट फॉर्मेट पे, डिफॉल्ट फॉर्मेट इज .mlx. okay, I am going to save it as a PDF, and you know .csv PDF will be created for everything, or you can save this as a doc file also. There is an option to save everything as a doc file also. So it is still creating a PDF of everything. Okay, you say यहाँ पे ये पूरा जो हमने उसमें एल्गोरिथम डेवलप किया उसका PDF कन्वर्ट हो गया, बट इसमें एक इशू है कि मैंने इसको PDF में कन्वर्ट किया, इसमें कोड भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कोड शेयर न करूँ अपने कलीग के साथ। आई वांट टू शेयर ओनली आउटपुट ओनली। ओके, तो और मैं इसका एक कंटेंट भी क्रिएट करना चाहता हूँ, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट। तो मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग जो ये फॉर्मेट किया है, मैं इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। नाउ यू सी 2D प्लॉट, एक जैसे मैं यहाँ पे 3D पे क्लिक करूंगा तो ये स्विच हो जाएगा 3D वाले प्लॉट पे, तो एक टेबल ऑफ कंटेंट भी क्रिएट हो गया, राइट। अब मुझे ये कोड शेयर नहीं करना, तो यहाँ पे ये आप देखोगे राइट साइड में हाइड द कोड का ऑप्शन है, कोड को हाइड कर दो आप, सिर्फ आउटपुट है। और जब मैं यहाँ पे जाऊंगा सेव एज में, तो इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स है, आप एज अ PDF डॉक फाइल, लेट्स से कि आप थीसिस राइट कर रहे हो और इसमें फिगर्स यूज करना है, तो जस्ट सिंपली आई विल सिलेक्ट द डॉक फाइल एंड आई विल सेव दिस, and I will get the table of content also there. So now you see here table of content is 2D plot and 3D plot also. So and this is my output only, figures only, right? And this is the first table of content, I mean first 2D plot, and here is this is 3D plot. Perfect. And here we have converted in a doc file. Perfect. अच्छा, ये जो मैंने कोड डेटा इंपोर्ट बताया था यहाँ से, अब इसको ऑटोमेट करना है, तो ये तो मैंने मैन्युअली वहां से इंपोर्ट टूल यूज किया। लेट्स से कि मुझे इसको ऑटोमेट करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये स्क्रिप्ट फाइल देख रहे हो आप, यहाँ से मैं स्क्रिप्ट फाइल, फंक्शन फाइल बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू जनरेट द स्क्रिप्ट फाइल फॉर दैट। ये प्लेन स्क्रिप्ट है ना, इसमें सेक्शन ब्रेक करने के लिए डबल परसेंटेज यूज करते हैं। डबल परसेंटेज इसे यहाँ पे यूज करूंगा, ये एक अलग सेक्शन में क्रिएट हो गया, राइट। ओके, ये स्क्रिप्ट फाइल है, इसी को लाइव स्क्रिप्ट में कोड जनरेट करना है जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है, यू कैन सी लाइव स्क्रिप्ट। अब ये लाइव स्क्रिप्ट में जनरेट हो जाएगा, सी परफेक्ट। ओके, ये स्क्रिप्ट फाइल जनरेट हो गई, ये ऑटोमेटेड है। इसको जब मैं रन करूंगा, ये यहाँ से मैं डेमो नाम दे देता हूँ, तो
फिर से वो फाइल लोड हो जाएगा जो मैनुअली हमने लोड किया. नाउ बाय कोड्स इट इज लोडेड बाय द कमांड. So we can generate the code also for the automation purpose. Okay. I'm going to close this. Now in the same file. Okay, something more I wanted to show you. Okay, here and this below one. अगर आपके पास एक्सेल फाइल है या टेक्स्ट फाइल है या CSV फाइल है, रीड टेबल से आप एज अ टेबल रीड कर सकते हो डेटा. द फंक्शन इज रीड टेबल एंड दिस इज माय एक्सेल फाइल. ठीक है, रीड टेबल कमांड है, रीड डेटा एज अ टेबल. ओके, तो रीड टेबल करने के बाद मुझे 1 से 10 तक का इंडेक्स विजुलाइज करना है. 1 से 10 तक रो है ना, मैंने बताया था ना पैरेंथेसिस ब्रैकेट इंडेक्सिंग कैसे होती है. 1 से 10, इसका मतलब ये सारा रोज विजुलाइज, सारा कॉलम विजुलाइज करना है मुझे. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें जाऊं, जैसे a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स क्रिएट करता हूं मैं. मैजिक एक इनबिल्ट फंक्शन है जस्ट टू क्रिएट ए स्क्वायर मैट्रिक्स. मुझे a का सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो कॉमा एंड ऑल कॉलम, सारा कॉलम का डेटा चाहिए. सेकेंड रो क्या है, ये है, ये सेकेंड रो है. I want 5, 11, 10 and 8 all this value I want here, right? So sorry, there is some spelling mistake. What is here? The invalid expression for missing multiplication operator. No, I was not multiplying. Okay, that is fine. So this is one. इसी में इसको जब मैं इन्वर्स कर दूंगा, let's say that column comma 2, इसका मतलब सेकेंड कॉलम का सारा डेटा. Same thing we are doing here in this one, here. So we have a table 1 से 10 तक सारा रोज, 1 से 10 तक रो और सारा कॉलम we are plotting. So here is the some data from here, right? So you see that what kind of data we have: last name, gender name, age, and a male or female age, location where they live, height, weight, smoker, if a person is a smoker or not, then what is the blood pressure, systolic pressure, that is high one, and a diastolic pressure, that is lower one, right? And what is the condition of that person, that is the excellent, fair, good, fair, right? So in machine learning we will see how to create a classification model for such kind of data when we have a session on machine learning. Okay, तो अभी एक काम करते हैं, हमने तो डेटा लोड कर लिया यहाँ से, right? Now we are going to plot it. What we are going to plot? Systolic pressure with respect to age. Just simply I am going to run this, and now you see again this data is a zigzag. We can't get any insight from there. Then do a scatter plot. By scatter plot, still we can't get any insights. मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि एज बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, राइट? वी कांट से इन दिस डेटा कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा, कोई डिपेंडेबिलिटी नहीं दिख रही इसमें, राइट? तो हम ग्रुपिंग करते हैं इसकी. तो जी स्केटर यूज करेंगे, जैसा मैंने बताया. एक्स एक्सिस पे एज है, वाई एक्सिस पे सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एज, एंड कैटेगरिकल डेटा smoker means if a person is smoking means 1, non-smoking means 0. Okay, so based on this column, ये स्मोकर का कॉलम कहाँ पे है, इसमें है ना, लास्ट वाला जो अभी हमने दिखाया था, है ना. Now we are going to plot. So what we are doing, if a person is smoker or not, based on that we are going to identify what is the systolic pressure of it. Now you see from this graph what it says. False means non-smoker and true means smoker. Y-axis systolic, here is age. Okay, so see this variation here. इसको हम क्लस्टरिंग भी करेंगे इन मशीन लर्निंग कि एज कम है और लेट्स से कि अ पर्सन इज नॉन स्मोकिंग तो कौन से क्लस्टर में आ रहा है, समथिंग लाइक दैट. Okay, right now you see if a person is non-smoking then pressure is normal, low. If a person is smoking, this color green one, light green, which you see on color it is. So here you see if a person is smoking then systolic pressure is very high, and as age increases, age पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है,
यहाँ पे भी ये वैल्यू हाई है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अकॉर्डिंग एज इज इंक्रीजिंग लाइक दिस, राइट? बट this blood pressure depends on the smoker also. It is dependent on the smoking. If person is smoking, he or she will have a high blood pressure. If it is not smoking, then low blood pressure, right? Okay, this was the session for today. Tomorrow we will see data pre-processing and core fitting, how to deal with missing data and all these things. Means if I am missing data, how to remove that or how to fill that data. And further, we will see how to create a linear and non-linear regression for it. How to use linear regression and non-linear regression, and we will create a static model tomorrow. So let me summarize everything. So from here, so we saw different data types: booleans, numeric data, text data, function handler means to write any function in a single line, write any equation in a single line using @, right? Then we saw different kind of containers. अगर different data types हैं, उसको single variable में save करना, तो we can use structure, cell, right? We saw data types also here, integer and floating type kind of data types, and we saw the ranges also. Further, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी होगा, उसमें मेथड होगा, फंक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. जैसे हमने एक स्ट्रिंग देखा, स्ट्रिंग वाज अ ऑब्जेक्ट, राइट? देन वी सॉ स्ट्रक्चर. अगर बायोडेटा बनाना हो या सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल फील्ड वैल्यू सेव करना हो, तो वी कैन यूज स्ट्रक्चर. एंड वी सॉ व्हाट इज स्केलर, मैट्रिक्स देखा, वेक्टर क्या होता है वो भी हमने देखा, उसमें फंक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी हमने देखा, डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं मैट्रिक्स से, दैट आल्सो वी सॉ, राइट? एंड दिस इज रिकॉर्डेड आल्सो, सो वी कैन शेयर दिस वीडियोस. फिर उसके बाद सम इनबिल्ट मैट्रिक्स फंक्शंस अवेलेबल्स हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? एंड फर्दर some helps how to get in MATLAB, right? Like elementary function, about operators, and we saw some documentation of that also, right? फिर उसके बाद सम स्टैटिस्टिक्स फंक्शन हमने देखा, मैक्स, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंगल लाइन कैसे ले सकते हैं, राइट? फिर उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लॉट्स भी हमने चेक किया, एंड लाइव स्क्रिप्ट भी हमने देखा. एंड इन लाइव स्क्रिप्ट वी सॉ हाउ टू राइट इक्वेशन, 2D प्लॉट, 3D प्लॉट. एक इसमें मिस है, सरफेस प्लॉट. वी विल सी दैट टुमारो, we have time. So in symbolic math we will see in the last session how to do a surface plot. last session में देखेंगे. फिर उसके बाद data import and export and visualization हमने देखा. Then tomorrow we will see data pre-processing and regression. So that's all for today, and if you have any questions, please ask. Candidates, if you have any doubts, you can clear it now.